A very good morning, class, and welcome to e-learning classes of business studies. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 21, we have covered the topic organizing, its process and importance of organizing. And with that, all the steps of the process and importance were done. Now in this lecture, that is lecture number 22, we are going to start the topic organizational structure. That what is the structure of organization and types of organizational structure. बेटा सबसे पहले what is an organizational structure? Organizational structure होता क्या है? Organizational structure is the detail how certain activities are delegated towards achieving an organization's goal. ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से एक्टिविटीज़ को डेलीगेट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक आउटलाइन होती है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ का रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये सब बताते हैं. बेसिकली बेटा क्या रोल है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के लिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एम्प्लॉय, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑल इज़ कैटेगराइज्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है. मोर अथॉरिटीज़ विल हैव द एम्प्लॉयज़, हायर विल बी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नाउ हैव अ लुक ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. बात सही है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया. With the help of that, we can work easily in different departments. What are the importance of organizational structure? Organizational structure की importance क्या क्या होती हैं? Number 1, faster decision making. With the help of organizational structure, it is really very fast to make the decisions. Decisions लेना बहुत fast हो जाता है. दूसरा, multiple business locations. With the help of organizational structure, there are multiple business locations as well. Third, organizational structure improves operating efficiencies. Yes, the efficiency of the operations is also improved with the help of organizational structure. Next, greater employee performance. Employees की performance में जो growth है वो होती है. Next, eliminates duplication of work. Yes. It is also one of the very importance of organizational structure that it eliminates duplication of work. Means work की duplication बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. Reduced employee conflict. Employees के बीच में अगर conflicts होते हैं then that are also being reduced. And better communication. When there is departmentalization of each and every work, when in organization every work is divided into different divisions, then always there is a better communication between certain peoples, right? After importance of organizational structure, let's have a look on types of organizational structure. बेटा organizational structures को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर. दोनों स्ट्रक्चर्स का मीनिंग आपको बताया जाएगा. what are the benefits of these structures as well as what are the drawbacks of these structures, right? So there are here 4 is by mistaken type. It is there are two types of organizational structure, functional and divisional. Number 1, functional structure. Basically बेटा functional structure में जो work है that is divided into specialized group with specific roles and duties. फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क को स्पेशलाइज ग्रुप में डिवाइड कर देता है एंड दैट टू विद स्पेसिफिक रोल्स एंड ड्यूटीज़. और उसमें डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं दैट आर ऑल्सो असाइंड. फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो नोन एज ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर को हम ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ कॉमनली फाउंड इन स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसमैन. क्योंकि ये स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस में पाया जाता है, इसलिए मोस्ट पीपल इन दी वर्क फोर्स हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन दी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ज़्यादातर लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में वर्किंग थोड़ा ईजी हो जाती है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन
लेट्स हैव एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बहुत सी कंपनीज़ हैं, दे आर डिवाइडिंग देयर ऑर्गेनाइजेशंस इनटू वेरियस डिपार्टमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन खुद को वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज़ द मैनेजर टू लुक आफ्टर इट। सो इन दिस वे दिस मैनेजर इज़ देन सुपरवाइज्ड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव हु ओवरसीज मल्टीपल डिपार्टमेंट। तो जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर हैं उनको लुक आफ्टर कौन करेगा, एक उनके ऊपर बैठा हुआ सुपरवाइजर, राइट। आफ्टर द एग्जाम्पल लेट्स हैव अ लुक ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। देयर आर 2 एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर आई हैव डिस्क्राइब्ड। नंबर 1, एम्प्लॉयज़ ग्रुप्ड बाय स्किल्स। एम्प्लॉयज़ को हम कैसे ग्रुप करते हैं, बाय देयर स्किल्स, जैसी जिसकी स्किल्स वैसा उसका ग्रुपिंग। सेकेंड, ग्रेटर सेंस ऑफ टीम वर्क। Yes, with the help of functional structure, there is greater sense of teamwork, means people are working more and more. What are the disadvantages of functional structure? Number 1, lack of communications and other departments. Basically, सारे departments के बीच में it's not possible to have proper communication. The proper communication lagged with other departments. As well as unhealthy competition. Competition भी unhealthy होता है. Why? Because communication is not proper and management issues. But natural, always there are conflicts and management issues when it comes to functional division. Next is your divisional structure. Basically divisional structure में various teams work with each other towards a single common goal. जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी टीम्स हैं, वो सब साथ साथ काम करती हैं और सबका एक ही सिंगल गोल होता है, what the goal of organization. Organizational goal is the goal of every team, right? And each of these divisions has their own executives. हर divisions के अपने executives होते हैं, अपने managers होते हैं, अपने branch operators होते हैं, and they allocate their budget own self, they allocate their resources by their own, and large company इस type के organization को क्या कहती हैं, divisional structure. जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है तो उसको सर्टेन डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है सो दैट द वर्किंग शुड बी स्मूथ। लेकिन हर डिवीज़न का जो मोटिव होता है वही होता है दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल शुड बी अचीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ द डिविजनल स्ट्रक्चर इन अ कार कंपनी दैट सेपरेट्स देयर कंपनी बाय SUV, इलेक्ट्रिक और सिडान व्हीकल ब्रांचेस। बेसिकली कार कंपनी में डिविजनल स्ट्रक्चर्स हैं और जैसे कि SUV को अलग डिवीज़न में रखा गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या सिडान को अलग व्हीकल ब्रांच में रखा गया है, राइट। हर ब्रांच के अपने फंक्शंस हैं एंड एवरीवन इज़ वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल दैट इज़ मेकिंग सेल। हर कोई सेम गोल की तरफ वर्क कर रहा है और गोल क्या है सबका, कि सेल जो है, जो बिक्री जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए। डिविजनल स्ट्रक्चर को हम मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं बिकॉज मैनी डिविजन्स आर देयर इन सिंगल स्ट्रक्चर। Let's have a look on advantages and disadvantages of divisional structure. What is the advantage? Focus on a single good or service. Single good पे focus बहुत अच्छे से करता है and more centralized leadership. और इसमें decentralization कम होता है, centralized leadership ज़्यादा होती है. What are the disadvantages of this structure? Number 1, poor integration with other divisions. दूसरी डिवीज़न के साथ इंटीग्रेशन मतलब कोलैबोरेशन प्रॉपर नहीं होता. कंपटीशन बिटवीन डिवीज़न के बीच में खुद में कंपटीशन होता है जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी कभी लैक हो जाता है. लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवीज़न के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता. एंड पोटेंशियल टैक्स इम्प्लीकेशंस, और टैक्स इम्प्लीकेशंस भी बहुत पोटेंशियल होते हैं. सो दीज आर योर डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. So my dear students, with this we are able to understand what is organizational structure, what is its meaning, its importance and its type, functional structure and divisional structure. That's all from this lecture. Thank you and have a nice day.